first of all of you over here for such a great initiative by Dr. Subramaniam. And firstly, I'd like to start by saying, sir, thank you so much. Dr. Subramaniam and I actually are neighbors. And it just so happened, it feels really good that uh, the work that I do, apart from just being an actor, the work that I do in the social causes, is just raising the social awareness that Dr. Subramaniam was actually aware of that, and he was able to get me together for join hands for such an initiative, which is Swachh Federation and the global UN Global Compact Network, right? So Swachh, I don't know how many of you know that, so I'll write to repeat. Swachh actually stands for Sanitation and Water for Community, Health and Hygiene. The word community only shows that how Swachh and Aquaguard and UN, like how we are trying to get the community, and by community we are not saying Bandra, Versova, Andheri. Community we are meaning women, people, Indians, all of us together. It's the humanity. The community over here means humanity. Getting humanity together for the betterment of hygiene and health and sanitation and water. And what better way to launch a product like Sanities? I'm just glad we are in that era and at that stage right now where a woman can openly stand on a podium in front of hundreds of people and talk about sanitation. I don't know how many of you know that, but honestly, I'm not going to talk about rural India. I'm going to talk right now about the urban India. I'm talking about Mumbai. I'm talking about Delhi. I'm talking about Hyderabad. I'm talking about cities like this. A lot of women till now are using, when it comes to sanitation, when it comes to menstruation, they're actually using the handmade cloth, the cloth which they just, the extra cloth which is lying around at home. They're using that. And that is what causes a lot of health issues, a lot of hygiene issues in women in India in today's day and age. And we're talking about 2018, we are not talking about 90s, we're talking about 2018 where we have films which are actually made only on sanitization, and publicly we are announcing that okay, the prices are less of all the sanitary pads, but even then a lot of them are using in urban cities handmade cloths or fabrics or cottons, which is actually really unhealthy, and they don't realize this is what leads to a further problem, health problem in women as they keep aging. And this is where Sanities comes in. Sanities, first of all, is biodegradable, which really excited me, sir, honestly. The fact that someone has put, we are banning plastic. Let's just start by that. We are banning plastic, but we haven't thought about something like this before, and this is where I stepped in, and this is what I said, yes, we need to now start a revolution and start something better. And that's when Sanities came in. It's biodegradable, it's fresher, it's healthier, it is much cheaper when it comes to costing than any other sanitary, commercially sold sanitary napkin in this day and age. The price, I think, is something that, and it being biodegradable, that a lot of people would, I feel, go for it and probably buy and use it, is because, because I see a lot of men here, and this is why, apart from women, I want even men to know this, because my father, my brother, my boyfriend, my friends, I want all of them to know that how much important a woman's hygiene is. Her health is honestly related all about hygiene. That is why I feel that women are superior, but when it comes to our internal organs, we need to be taken more care of. Or that's why I think every woman should be treated like a queen or princess, honestly. Because little problem in our hygiene, little carelessness in our hygiene leads to 68% of the problems in women's health. Coming back to Sanities, it's green, that is what we are promoting, that it's green. And the fact that, nearly, like, we have, I think, almost more than half of our population right now is women and girls. So first of all, a big yay and round of applause for government. Years back banning, female fetus killing. So thank you for that, because women are the next generation. Of course, the men are the generation now, but women are the next leaders of the world. So as I said, that more than half of our population, and I'm just talking India, I'm not also talking whole of the world,
most of our country's population, more than half, is women and girls. Over 355 million are right now menstruating. And out of that, I'm talking only 10% who are actually healthy and taking care of themselves, mainly because it's not reaching in the rural area, and mainly because of the price. And like I said, this is why I'm really happy and honored to be launching Sanities. It's biodegradable, so go green, go the nation, cleaning. It's much cheaper than the commercial pads which we are selling. And like I said, it's for everyone. It is for everyone. It is just a promotion of a healthy woman, a healthy girl in your life is what's going to take the nation here. Thank you so much. आज मैं आई हूँ टू लॉन्च स्वच्छ, और स्वच्छ का एक यूएन कॉम्पैक्ट इंडिया के साथ एक इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड सैनिट ईज़, जो विमेन हाइजीन पे। स्वच्छ का मतलब ही एक्चुअली डॉक्टर सुब्रमण्यम मेरे साथ है। डॉक्टर सुब्रमण्यम, आप बताइए। स्वच्छ बेसिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। एंड स्वच्छ हमारे लिए सिर्फ टॉयलेट्स नहीं है, इट इज़ सैनिटेशन एंड वाटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। तो जब हमने कहा कि हम एक नए इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसको इंटरनेशनल स्वच्छ फेडरेशन किया जाता है, वो हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किए हैं। उसके तहत हमको सैनिटेशन यानी शौच, पानी शुद्धिकरण और वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर बहुत काम करना है। बट ये पूरा आइडिया में हाइजीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो आज विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक हमारा सबसे बड़ा फोकस है। तो जब हम ईशा जी से बात किए और कहा कि हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स लॉन्च कर रहे हैं जो ग्रीन है, तो उन्होंने कहा एनी ग्रीन इनिशिएटिव आई एम रेडी टू सपोर्ट, एंड इफ इट इज़ फॉर वुमेन्स हाइजीन ऑल द मोर। तो वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली दैट शी एग्रीड टू दिस। और जैसे स्वच्छ के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने बताया, अभी तक हम बस बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को स्वच्छ करने की, साफ़ सफाई करने की, साफ़ पानी की, हर जगह शौच बनाने की। मूवी आई, मगर तभी से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और आज की डेट में 2018 में भी हम रह के, जैसे मैं पहले भी बोला, हम मुंबई की मैं बात करूँगी, मैं गांव की बात भी नहीं करूँगी। काफ़ी औरतें ऐसी भी हैं मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ कर पा रहे, या तो उन्हें महंगा पड़ा है या फिर उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत चीज़ों से मैटर करती है। तो यहाँ पे हम वही हमारी जो एजुकेशन और नॉलेज हम जो फीमेल्स को, जो हमारी जो कंट्री की विमेन है, जो हम उन्हें देना चाहेंगे वो ये है कि सैनिटीज़ जो लॉन्च हुआ है, एक तो बायोडिग्रेडेबल है, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ा वो वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, जो कमर्शियल पैच है उससे कहीं ज़्यादा सस्ता है। तीसरी चीज़, बहुत आसानी से अब ये हर जगह अवेलेबल होगा, तभी ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, यूएन के अभियान के तहत, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत होती है औरतों को वो उनकी हाइजीन की वजह से होती है, नॉट जस्ट शौच, नॉट जस्ट पानी नहीं है, बट उनकी हाइजीन की वजह से। तो इसीलिए सैनिट ईज़ जो हमने सैनिटरी नैपकिन आज लॉन्च किया है, वो वही मद्दे तहत सोच के रखा है कि वो कैसे ग्रीन है और हेल्दियर है, और नैपकिन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। जी, इसके साथ साथ काफ़ी और भी वोमेंस की प्रॉब्लम्स जी, इस पे नज़र डालनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? आजकल चल रहा है विमेन इक्वालिटी का, और अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें कि जस्ट स्पीक अप। ज़्यादा नहीं बोलूँगी उसके बारे में, यही बोलूँगी 2018 में, अभी भी 2019 में हम पहुँच ही गए। अभी भी बहुत दुख होता है कि जब एक औरत अपने बारे में बात करती है कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे इसने छेड़ा, उसने छेड़ा, तब भी उसे दबाया जाता है। पहले बोलते हैं हाँ चल, पहले की बात क्या बोल रही है, या फिर कोई उसे सपोर्ट नहीं कर पाता।
तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सब मर्द एक साथ जुड़ें। और उसी मुझे पता है वही टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश उस टॉपिक पे ये हूँ कि फरहान अख्तर ने बहुत स्ट्रांगली बोला है, विमेन हर कोई हम एक साथ जुड़े हुए हैं, बट फरहान अख्तर ने एक बहुत स्ट्रॉन्गर, अभी से नहीं, फरहान अख्तर ने हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फोकस रखा है। एंड उन्होंने इस बार भी बोला, और मैं चाहूँगी पूरी इंडस्ट्री क्या बल्कि पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए जुड़े, बिकॉज अब्रॉड भी अभी तक ये हो रहा है। अगर आप देखें हॉलीवुड में भी यही चल रहा है कि कितनी औरतें पहले जिनके साथ हैरेसमेंट हुई वो बोल नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उन्हें बोला दब जाओ, काफ़ी लोगों ने बोला अरे आगे काम नहीं मिलेगा मत करो। मगर अब ये बहुत अच्छा है कि अब ये इनिशिएटिव नहीं मैं बोलूँगी कि मतलब अब इतनी हिम्मत औरत में आ पा रही है, और औरत और कम्युनिटी की वजह से कि अब वो आगे बढ़ के अपनी बारे में बोल पा रही है। These things, do you think that she will get justice after शी नहीं, आई थिंक एवरी वुमन शुड गेट जस्टिस, या बिकॉज ऐसा नहीं है, और मैं बस हमारी इंडस्ट्री की नहीं, हर इंडस्ट्री में हर लेवल पे होता है कि यू नो आदमी लोग अपना मतलब अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं हर लेवल की बात कर रही हूँ, हर लेवल पे होता है। आपको एक मैनेजरियल लेवल पे भी कोई बोलेगा अरे मैं आपको काम दे सकता हूँ, आपको पोजीशन दे दूँगा, ये करो वो करो। आई जस्ट थिंक पहले जैसे मैंने बोला, पहले औरत डर जाती थी पहले, क्योंकि उन्हें लगता था एक हिस्ट्री की बात होती थी, बट अब हर स्टोरी लिखी जाएगी। बट इस तरह का टॉपिक हर बार उठता है, बट कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता किसी की तरफ से भी। लोग बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? मैं ऑनेस्टली मैं मीडिया का थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं निर्भया कांड से लेके अब तक मैं बात करूँगी। निर्भया कांड भी इतना बड़ा, हम सब जुड़े, हम सब ने कैनल मार्च की, ये किया वो किया, मगर अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता, आपको सच बताओ तो चीज़ें दब जाती है। मीडिया के सपोर्ट से ही नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड स्टोरी जाती है, और वैसे ये स्टोरी भी है। स्टोरी क्या, ये हर जगह हो रहा है, मगर अब मैंने जैसे बोला, अब इतनी हिम्मत आ पा रही है कि बाहर आके लोग बोल पा रहे हैं, और मीडिया की वजह से ही हर घर में न्यूज़ पहुँच रही है कि अच्छा ये भी हो रहा है। तो इंसान को, मेरे फादर इंडस्ट्री में, उन्हें खुद मतलब कि उनकी बेटी इंडस्ट्री में, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ऐसा सब भी होता है इंडस्ट्री में। मगर जैसे मैंने बोला, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि घर में लोगों को पता चल पाए ऐसा भी होता है, और हर औरत को और हर माँ बाप भी अपने बच्चों को हिम्मत दे पाए कि अगर ऐसा कुछ हो तुम हमसे बात कर सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, यू नो अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। इसके अलावा नाना पाटेकर ने केस फाइल किया है आगे दूसरी दत्ता, अगर दूसरी दत्ता को कुछ एडवाइस देना तो क्या देना चाहेंगे? कुछ नहीं एडवाइस देना चाहूँगी, बस ये बोलना चाहूँगी एक औरत को औरत के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही है जो एक औरत को देख के बोलती है अरे ये स्लट है, ये होर है। एक मर्द नहीं बोलता कभी ये, मगर मर्दों को तो बोलता है हाँ 10 औरतों के साथ सोया ना, वेरी गुड। अगर औरत का डिवोर्स भी हो जाता है तो बोलते हैं डिवोर्स हो गया, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो मैं बस ये बोलूँगी, एक औरत अगर औरत के साथ जुड़े ना, तो हम हिंदुस्तान का पूरी दुनिया बहुत आगे जा सकती है। आई थिंक इसीलिए वॉर्स जो आई थिंक अगर औरतें बन जाए ना हर कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, तो झगड़े होंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग यू नो सब शांति से रखेंगे, क्योंकि औरत में जो ममता होती है वो आदमी में नहीं हो सकती। मगर आई थिंक औरत को औरत के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ।